Hello all, welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be discussing about recent declaration of result of Bank of Maharashtra. It is especially oriented towards uh, the cut-off discussion, means safe score discussion, and interview guidance will also be included. This is mainly useful. We are very concerned about their selection and are somewhat dissatisfied their performance in the written exam, and they are saying that I have scored around 70, around 80. What are my chances? What are uh, should I be selected? Would I be selected or not? And etc. etc. Two, three persons who having my mobile number called me directly, sir, I am feeling puzzled, etc. Then I would say do not feel puzzled. Everyone has a fair chances of selection, but some persons who have scored very poor in the written exam, they need to rethink about their preparation, about their strategy, what they followed. uh, if you are average student, above average student, then you need to do very good in the interview. During the interview you have to be very careful what you are answering and how you are answering the questions, because even a small mistake will clash the chances of your selection. Okay. uh, Further, if you have any queries, you can directly contact me just by uh, typing in search field of the Telegram channel. You typed at the rate exam zone 24/7. This is my username. Okay. If you will type this, it will show me directly to you. It जब भी आप इसको टाइप करोगे तो जो उसमें दिखता है, that's me in our Telegram. You message me, I will send you the link if you want to join Telegram group. And further, this Telegram group is free and not paid, and I feel that it should never be paid because you people are struggling a lot in getting the selections. Okay. Further, a small amount of money is not going to benefit me in any way if I am asking money for my guidance and all the things I am posting over the YouTube and Telegram. The best thing what you can give me your selection and your message, sir, I have got selected. Okay. Then try to do this event possible of your selection. And okay, without spending much time over the such things, we will be moving towards discussion. One thing, what should I say, that how we will be discussing these topics, will we will be moving towards, and our topic is oriented towards this. Okay. And this we will be discussing in the manner that what is the safe score in the written to clear the final selection. Notice that there is no safe score like thing. Okay. No safe score. I have seen the people who got failed in the interview. They may fail you also. Okay. Then what about your scores? It will vanish. And I have seen those some of candidates last year who have scored just above the average marks and got the final selection. Okay. Then what is more important, how you are attending the interview, how much are you serious about interview and your selection or not. Further, कुछ बच्चे बोले इंटरव्यू क्लासेस, सर one thing you should know, you are experienced people, they are not going to ask what they are grooming you. Ultimately what you have being trained in, yes, it somewhat may matter how you are presenting. If you completely unable to represent yourself in your own way, then you just take a guidance from anywhere. I will be guiding also, but if I have time, then only I have guide. I have a very uh, I am very busy in doing my job. It Although I am in a public sector bank. Once you will get in public sector bank, you will also know that the saying that public sector bank is easy is just a talk. No, there is a huge pressure, and as senior manager, you have added responsibilities also. And then you have to do.
you prepare yourself accordingly. If any guidance is required, you just search exam zone 24/7 over Telegram, put at the rate before that, and you message me. I if time is available, I will provide you a slot for mock interview over WhatsApp. The call will be audio because in video call you people know that voice is not very clear. Okay, voice is not very clear. It will defeat the very purpose of interview and guidance. Okay, so see the video and do not forward and this video, because you will lose the things, you will be missing the things in between what I am taking out, because I will be sharing the Excel sheet in which the marks are converted using Excel formulas. Uh, you will get it easy, and you will easy able to get your final score just by adding the interview marks. You need not to convert it, but I will be telling what is all behind. First, we will discuss about skill 2 and thereafter skill 3. But in this video, I didn't discuss skill 3. But using this method, this way of discussion, the skill 3 persons can also uh, do this practice with your own, and n- apply to their scores and get their outcome. ओके, टोटल वैकेंसीज इन स्केल टू कितनी है? 400 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं स्केल टू में, एंड टोटल कार्ड 890. अगर हम रेशियो देखें, वी विल सी द रेशियो, दिस इज 1:2.2 फॉर वन seat. They call 2.2, but 2.2 is not going to make any sense. Therefore, we multiplied the both side by 4. It will come, and 8.88, it will be around 9. Okay, मीन्स अगर 9 लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसे 4 लोगों को ही लेना है। इंटरव्यू वाला केवल 4 लोगों को लेगा। ठीक है, तो आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि इट इज़ वेरी टफ रेस। ठीक है, अगर 9 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, you know, and this is not equal to 4. Okay, it is, if you will say 8.8 is 8 and 4, then out of 50% will be debarred. 50% लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा मत मानो कि जो 890 में तो टॉप 400 का हो जाएगा, फिर ये बाकी 400 वाले क्या करेंगे। ओके, हाँ, फर्दर आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी इससे थोड़ा सा लेस मार्क्स में आ सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेस रहेगा कि उनका मार्क्स अगर थोड़ा सा कम है रिजर्व कैटेगरी में, अगर किसी का जनरल कैटेगरी में 75 है, तो रिजर्व्ड में 70 है, then also they have almost equal probability. Okay, because if he will increase some score, he will be getting the unreserved seat. If he is not getting the scorer, he will be shifting to OBC or reserved category, then they will be having a good chances. Okay, then we see that there are 50% chances of the selection. Okay, means there 50% will be debarred. Say approx 4:9 is the ratio, means out of 9 only 4 will be selected. It is more than 50%. Okay, it is more than 50% will be rejected. Correct, मोर देन 50% सिलेक्शन। अच्छा, अगर परसेंटेज में आपको सिलेक्शन निकालना हो तो 4/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको परसेंटेज पता चला। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, दिस इज नॉट ए क्वांट क्लास। ओके, हाईएस्ट मार्क कितना है? 110 इज द हाईएस्ट मार्क, and 110 is a very good mark. Okay, and it is out of 150. बट अभी अभी आपको पता चलेगा कि 110 although it is good mark, but there is very good sign of rejection on 110 also, and anyone can defeat it. थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 110 के अराउंड ही मार्क्स ला सकते हो। ओवरऑल ऐड करने के बाद जो 110 वाले का स्कोर बनेगा, वो आपका भी स्कोर बन सकता है, इवन आपका मार्क्स अगर 110 से कम है तो।
जो 400th कैंडिडेट पाया है वो 79 पाया है। इसका मतलब ये है कि अगर क्लियर कट ये केवल रिटर्न के ऑर्डर में बच्चों को लें तो 79 से कम वाले मतलब 78 वालों तो वैसे ही रेस से बाहर हैं। ठीक है, बट इट डजेंट मीन्स दैट दे आर आउट ऑफ रेस। इज इट जस्ट आई एम सेइंग दैट इफ दिस एग्जाम वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, बट देयर आर a number of things in interview also. Okay, rest are between 185 and 70. Okay, not 185. It should not be 185. It is 185. It should be 85 and 70. 85 के बाद means we should say that it is very good to say some because some a number of candidates are there on 85. तो 84 to 70 के बीच में बाकी लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि 70 मार्क्स वाले भी उसमें आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया होगा। ठीक, 890 में, अच्छा 890 ठीक है। ओके, वी विल बी सीइंग अबाउट दिस। But how many candidates are called for interview? Just I have taken that 400 कैंडिडेट को लिया है मैं लिस्ट में, केवल टोटल टॉप 400 को लिया हूँ। ठीक है, उनके मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी कितने लोग हैं उनका भी लिस्ट में है, उसके बारे में डिस्कस इसके आगे करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको इंटरव्यू मिलते हैं, कहीं 100% भी मिलता है, एज इट वाज इन ऑल इंटरव्यू, 2 इंटरव्यूज ऑफ माई केस। वन में तो नहीं मिला था इतना, एक में तो मुझे भी कम ही मिला था। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, आई गॉट अराउंड 68 marks. By after I have attended 2 interviews and 100 out of 100 marks were there. If it was 20 out of 20. Okay, then that's why I was having a good rank. तो इंटरव्यू से डोंट वरी अबाउट इंटरव्यू, बिकॉज इफ एट एट लास्ट क्या होगा, नहीं होगा ना। तो अगर फियरफुल होके आप जा रहे हो तो यू विल बी जस्ट आस्किंग, विल बी वरीड अबाउट योर रिजल्ट, यू वोंट बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप पे फोकस करो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन इंटरव्यू। यू फॉरगेट, अच्छा अभी आपको अगर ये मार्क्स नहीं पता चला होता तो आप उतना पैनिक नहीं होते। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्क्स पता चल गया है, अब आपको पैनिक आ रहा है, अब आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम हैं और के ज़्यादा हैं। आपके कितने लोगों से ज़्यादा हैं ये भी आप नहीं सोच रहे हो, आपसे ज़्यादा कितने लोग हैं ये सोच रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, यू डोंट थिंक, प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट आई विल एक्सप्लेन दैट यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस दैट हाउ यू कैन डू बेटर। एवरेज मार्क्स कितने मिलते हैं? 70% to 85%, और हमने ये माना है कि 75 के अराउंड मिल रहा है, तो ये आप एवरेज मार्क्स मान सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स 85 to 95, तो आप ये मान सकते हो मैक्सिमम 85 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, फिर 65 to 70% को एवरेज, बिलो एवरेज मानेंगे। और पुअर मार्क्स हो गए कौन से? अगर 65% से बिलो दिया तो दैट विल बी पुअर मार्क्स। एवरेज मार्क्स 70 to 85, हालांकि 85 इज आल्सो वेरी गुड मार्क्स, एबोव एवरेज मार्क्स, बट मैंने इस कैटेगरी में रखा हुआ है क्योंकि एक साथ कई सारे परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, सीट्स बहुत लंबी हो जाएंगी। तो 70% टू 85% ये हमने एक स्लॉट में रख दिया है। एक्चुअली इट वाज 77%, अगर इसका एवरेज करो 77 आता है, मैंने इसको 75 रखा हुआ है। 75, 65 to 70 ये मैक्सिमम लोग पाएंगे, आप ये नोट करो। मैक्सिमम लोग इसके इस रेंज में रहते हैं, 65-70 सबको बिलो एवरेज मिलता है, बिकॉज दे डोंट टेस्ट योर नॉलेज। पता है, आप इंटरव्यू में कुछ भी ना पढ़ के जाओ तब भी आप इंटरव्यू अच्छा कर सकते हो, और पढ़ के जाने के बाद भी खराब कर सकते हो। ठीक है, जब आप धीरे धीरे 2-3 इंटरव्यू देंगे या देते होंगे तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि रियलिटी में आपके नॉलेज का दिस उतना रोल नहीं है जितना आप समझते हैं इंटरव्यू में। मेजर कंट्रीब्यूटर तो वो रहता है जैसे ही आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या कभी वो पूछता ही नहीं है, पूरे इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंदर कुछ अगर स्पेसिफिक चीजें हैं, देन हाउ यू गेट इनटू, हाउ यू आर
molding the panel towards about you and knowing that you have such qualities also। हो सकता है उनका काम है पूछना और आपका काम है बताना, ठीक है। उनका काम है आस्क, आपका काम है टेल। बट इवन इफ यू डोंट आस्क देन आल्सो यू टेल। अब बट इट इज अप टू यू। कुछ क्वेश्चन में आप चीजों को ऐड करते हुए ऐसी जगह पे ले जा सकते हो जहां पर आप अपने बारे में कुछ चीजें बता सकते हो, ठीक है। जब भी मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा तो आपको बताऊंगा, आपसे मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछा गया तो भी आप अपनी चीजों को किस तरह से और कहाँ पे बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुअर मार्क्स बिलो 65% जिसका भी होगा पुअर मार्क्स होगा। नाउ वी टेक दैट इफ हाईएस्ट मार्क कैंडिडेट गेट्स एवरेज मार्क्स इन द इंटरव्यू। सिलेक्शन के चांसेस कब हैं? जब आपसे ज्यादा मार्क्स जो पाया हुआ है, आपका मार्क्स यहाँ पे है और आपसे ज्यादा वाले का मार्क्स इधर है। अभी आपका इंटरव्यू अच्छा हो और इसका इंटरव्यू खराब हो तो दोनों लोग यहाँ पर आके रुक जाएंगे। अब आपका इंटरव्यू क्या है, अच्छे से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब इसका एवरेज जो है मतलब थोड़ा खराब, एवरेज से थोड़ा बिलो जाना चाहिए। बस आपका सिलेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा हैं तो अगर इसका इंटरव्यू थोड़ा सा खराब भी हुआ देन आल्सो ही विल बी अबव यू। बट इसका खराब हुआ है ठीक है, बट आपको अपने पे कंसंट्रेट करना है कि आपका ज्यादा हो जाए। आपका ज्यादा हो जाने के लिए अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें रेशियो 60-40 का है तो देन बेटर। मैंने देखा नहीं कि क्या रेशियो है, यही दो रेशियो चलता है बैंक एग्जाम में। एक 80-20 चलता है जो आईबीपीएस में अभी भी कॉमन है, ठीक है। एक 60-40 भी चलता है और 80-20 भी चलता है, तो हम दोनों पे डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 80-20 का मतलब क्या है? अभी देखो 80-20 का मतलब हाउ दे कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करना है, 150 मार्क्स का जो पेपर है उसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, अब ओके, 150 मार्क्स को 80 मार्क्स बनाया जाएगा और इंटरव्यू में जो 100 मार्क्स है उसको 40 मार्क्स में या 20 मार्क्स में। 80 का है तो इंटरव्यू वाला 100 मार्क्स वाला 20 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। और अगर सिक्स अब देखो 60 और 40 का है तो 150 वाले मार्क्स को 60 मार्क्स में बदलेंगे, चेंज करेंगे। और 40 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू वाले बच रहे हैं वो 100 मार्क्स को 40 मार्क्स में चेंज करेंगे। तो ये 60 + 40 कितना हो गया? 100। ये भी 100 में कन्वर्ट हो गया। और 80 और 20 क्या हो गया? ये भी 100 हो गया। तो ये दोनों मार्क्स 100 कन्वर्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैं बताता हूँ आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। वन थिंग यहाँ पे बताता हूँ, देखो 80-20 का क्या मतलब है। 80-20, ओके। सपोज यू स्कोर्ड 80 मार्क्स छोड़ो, 75 मार्क्स। 75 मार्क्स वाले बहुत हैं। 75 मार्क्स आपने स्कोर किया, कितने में स्कोर किया? 150 में। अब इसको 80 में बदलना है तो 150 मार्क्स है अगर आपका, कितने में? 150 मार्क्स में से आपने 75 मार्क्स पाए हैं। अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो आपके मार्क्स कितने हैं? 75। अगर 1 मार्क्स का पेपर है तो 75/150। अब देखो अभी पेपर कितने मार्क्स का बना दिया? 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का पेपर है तो कितना मिलेगा? 80। ये सीख लो आप, कभी भी आपको काम आएगा ये, ठीक है। बस ठीक। अब ऐसे सीधे 1/2 75 2 150 भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? 40। समझ में आया? 40 हो गया ना। मतलब अगर आप 150 मार्क्स वाले पेपर में 75 पाए हो, 80 मार्क्स वाले पेपर में 40 मार्क्स। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसका कितना परसेंट है? ये 50% है, हाफ मार्क्स पाए हो ना। 80 पेपर में भी हाफ मार्क्स पाओगे वैसे भी। बट ये हमने सिखा इसलिए दिया कि जरूरी नहीं है आप हमेशा हाफ मार्क्स ही पाओ, ठीक है। अगर हाफ मार्क्स नहीं भी पाओगे तब आपको कैलकुलेट करने में ये इजी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अभी आपको बताता हूँ,
अब इंटरव्यू का क्या करेंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और आप मान लो उसमें 65 मार्क्स पाए हैं आप, ठीक है। तो 65 मार्क्स पाते हैं, अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा तो 65 मार्क्स, ठीक है, आप पाए हुए हैं 100 मार्क्स में से। अगर 1 मार्क्स का इंटरव्यू होता तो आप कितने मार्क्स पाते। अब अगर 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा तो कितने मार्क्स पाओगे। करेक्ट। दूसरा, इसका 65% निकाल लो। 100 में से 65 पाए हो, 65% ही पाए ना, तो 20 का 65% निकाल लो। दूसरा मेथड है ये आपका, ठीक है। तो कितना आया 13, यहाँ का आया कितना 13। तो मतलब अगर आप 65 मार्क्स इंटरव्यू में पाते हो और उसको 20 में कन्वर्ट करेंगे तो आप 13 मार्क्स पाओगे, ठीक है। और 75 अगर रिटर्न में पाए हो तो अभी मैंने बताया कि 80 के हिसाब से कितना पाओगे, ठीक है। 80 के हिसाब से कितना पाओगे 150 में ये, तो 80 के हिसाब से आपने निकाला ही था कि 40 मार्क्स पाओगे। तो अगर ये 80 और 20 ऐड करें तो इधर कितना ऐड करना पड़ेगा 30 प्लस 40, आप मतलब 53 मार्क्स ओवरऑल पाओगे 100 में से। ये आपका स्कोर है, इस तरह से स्कोर बनेगा। करेक्ट, समझ में आ गया कि नहीं आया तो आप बैक करके देख सकते हो। इसी तरह से केस 1 केस 2 ऐसी को 60 में बदल सकते हो, जिस तरह से 80 किया गया है। हमने एक्सेल सीट जो बनाई है उसमें 40 80 20 और 60 40 दोनों रखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन एक्सेल सीट मैंने बता दिया है, एक्सेल सीट में कैसे कैलकुलेट किया है। फिर से बता देता हूं आपको कि एक्सेल सीट में हमने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। एक्सेल सीट में चलो मान लो आपका रिटेन का मार्क्स था 75 और इंटरव्यू का मार्क्स था 80। ये 100 मार्क्स का हुआ था, ये 150 मार्क्स का हुआ था। करेक्ट। अब इसको 80 और 20 का अगर रेशियो है तो आपका कितना बनेगा देखो, ठीक है। इसका अभी मैंने बताया, इसका कितना बन जाएगा 40 मार्क्स, ठीक है। अब इसका इसमें कितना पाए हो 80, तो इसका बन जाएगा 16 मार्क्स। इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 80 और 20 कितना हुआ। 100 मार्क्स के पेपर में आपने कितने पाए 56। ये इसका कैलकुलेशन मेथड है। क्लियर, ठीक है। अब 60 40 वाला भी बता देता हूँ। देखो, जैसे 150 मार्क्स का आप में पेपर में आपने 75 पाए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है 60 40 का रेशियो ये लग रहा है, एक को 60 में चेंज किया जाएगा, एक को इंटरव्यू को 40 में, ठीक। तो अब देखो, अगर 75 मार्क्स आपने पाया 150 बार, अगर ये 1 मार्क्स का पेपर होता तो 75/150 पाते। अब अगर ये 60 मार्क्स का पेपर हुआ तो, ठीक है, तो ये कितना हो गया 30, यही तो हुआ। अब इधर आपको 40 में चेंज करना है। मान लो आपने 80 मार्क्स पाए थे इंटरव्यू में, ठीक है, इसको 40 मार्क्स में चेंज करना है, ठीक है। 80 मार्क्स आप पाए हो जब भी 100 का पेपर था, तो अगर 40 का पेपर हुआ तो कितने पाओगे, ठीक है। बस 32, ठीक। अच्छा, दूसरा मेथड बता दूं, 80 पाए हो ना 100 में से, मतलब 80% मार्क्स पाए, तो 40 का 80% ही तो पाओगे, ठीक है। 40 का 80% तो सीधे 32, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तब भी 30। थोड़ा क्वांट अच्छा रखो यार अपना तुम लोग, भाई क्वांट एप्टीट्यूड नहीं आएगा तो फिर कैसे सेलेक्ट हो। चलो 32 ये आप पा गए, 30 ये पाए गए। अभी कितने पा गए आप, 30 प्लस 32, हाँ कितना हुआ। समझ में आया कि नहीं कितना बड़ा गेम हो रहा है 60 40 वाले केस में। देख रहे हो, आपका रिटेन वहाँ 30 रहा और ये इंटरव्यू वाला 32 हो गया। तो इंटरव्यू इतना मैटर कर रहा है क्योंकि रिटेन 60 40 में तो बस 20 मार्क्स का ही डिफरेंस है ना। तो
there nothing going to be a big change in interview, in written, sorry, in interview you can do। ठीक है, अभी इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट खोलते हैं और हम आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ सके। उसके बाद हम ये इंटरव्यू की बात करेंगे। ठीक, डेस्कटॉप खोलते हैं, ये हमारा एक्सेल सीट है, इस पे आ गए हैं। ठीक, ये देखो आपका जो पहला बंदा है उसका स्कोर यहाँ दिख रहा है, ये 110 पाया हुआ है। 80-20 के रेशियो में अगर हम चेंज करें तो इसका 58 मार्क्स बैठता है रिटन में। ठीक है, 58 मार्क्स बैठता है रिटन में। ओके, उसके बाद ये इंटरव्यू का मार्क्स इसमें ऐड किया हमने। ठीक है, 60-40 में करोगे तो ये मिलेगा। ओके, हाँ, ये क्या किया है हमने, मैंने 70% मार्क्स इसको दिए हैं। किस में 70% मार्क्स दिए, 80-20 केस में, तो इतना हुआ। और 60-40 वाले को अगर इसमें 70% मार्क्स दिए तो 72 आ रहा है। ठीक, अभी आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इस बंदे को 70% मार्क्स दिया। अभी आप 60-40 वाला रेशियो चलो देखो, चलो 60-40 वाला देखते हैं। ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, 60-40 रेशियो, और ये भी हटा देते हैं। करेक्ट, चलो अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, D2+12 बात देख, क्योंकि वो हटा दिया ना, उसका ही है ये, एनालाइज करने के लिए। तो अब क्या है, इसका इंटरव्यू का मार्क्स 70% करके 28, 40 का 70% कितना होगा? 40 का 70% तो 28 ही होगा ना, 100 से डिवाइड करोगे तो। ये 28 इसमें ऐड कर दिया हमने, कौन सा, 60-40, 60-40 का रेशियो है। तो इसका अगर 100 पाया है रिटन में, तो इसके कन्वर्ट करोगे तो रिटन में 44 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 28 आ रहे हैं, तो 72। इस तरह से ये सभी कैंडिडेट्स का हमने ऐड किया। ये एक्सेल सीट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसमें समझ सकते हो। मैं बता दूं कि एच कॉलम जो है 80-20 रेशियो है, आई जो है वो दूसरा रेशियो है। ये क्या है, ये हमने एनालाइज किया है अगर पुअरेस्ट मार्क्स मिले तो। ठीक है, पुअरेस्ट मार्क्स। ठीक है, पुअरेस्ट मार्क्स मतलब 60% मार्क्स मिला उसको, मान लो 60% मार्क्स मिला, 20 20 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ, 60% मिल गया इसको। भाई देखो, अगर 100 में से वो 60 पाएगा तो 20 में से 12 पाएगा, वही ऐड किया हूं उसमें, इसमें 12 नंबर सब में ऐड किया हूं, तो 12 ऐड कर दिया मैंने पुअर वाले में, इसका आया 70। अब आपको मैं दिखाता हूं नीचे, आओ, ये सब लोगों का कन्वर्ट कर रखा है। ठीक, तो ये देखो 200 वाला जो बंदा है, 200 वाला हाफ पे 57, इसको क्या है, इसको भी 70% मार्क्स हमने दे दिए हैं, 70% मार्क्स हमने दिए हैं। ये भी 60 मार्क्स है, ये 85 मार्क्स है, 85 ये पाया हुआ है, 60-40 का रेशियो है। ठीक है, तो इस तरह से इसका 57 बन रहा है। अब मैं आता हूं ज्यादातर लोगों का जिसका 75 मार्क्स है। 75 मार्क्स वाले आ जाओ भाई, किधर हो, ये आ गए 75 मार्क्स वाले। ठीक है, 75 मार्क्स वालों का ये 60% इसका बन रहा है 30 मार्क्स। ठीक है, मतलब 60 में कन्वर्ट करने के बाद अगर इनका देखो 150 मार्क्स का था, ठीक है, तो 75 मार्क्स पाए थे, अगर 150 मार्क्स का था, तो 60 मार्क्स का अगर ये कर दिया जाएगा कन्वर्ट, तो ये कितना आएगा, 30। करेक्ट। अब मान लो इस बंदे का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, और इसके पास जेआईबी है, सीआईबी है, एमबीए भी है, कहीं से क्रेडिट में काम किया है, फॉरेक्स का नॉलेज है। अब इसको मिलता है 90%।
90% अगर मार्क्स इसको 40 के मिलेंगे तो इसको 36 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आ गया स्कोर 66। अब देखो, अगर टॉपर वाले, इसका 66 आ गया, अभी ऊपर देखो आप, मैं बताता हूँ। 66 के पास हम पहुंचते हैं। 66, 66 भाई किधर है? आ जाओ भाई 66, और आ जाओ, और आ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट, ऊपर होगा। आ गया, ये इधर कहीं है 66। ये मतलब देख रहे हो, ये टॉप 11 में आ गया, टॉप 10 में आ गया बंदा, 75 वाला टॉप 10 में आ गया। मतलब अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी, ऊपर वालों ने गलत किया, गड़बड़ किया, ठीक है, तो ये बंदा जो इंटरव्यू का अच्छे से तैयारी किया और क्वालिफिकेशंस है, वो टॉप 10 में आ जाएगा। समझ में आया? जबकि इनको 70% मार्क्स मिला है, उसको ज्यादा मार्क्स नहीं, इसको 20% ही ज्यादा मिला हुआ है, लेकिन वो 75 पे होते हुए भी ऊपर आ जाएगा। करेक्ट? तो इसलिए कह रहा हूं कि 75 मार्क्स वाले जो हैं उनका मार्क्स पुअर नहीं है, 60-40 है तो। और 80-20 है तब भी आप ऐड करके, कैलकुलेट करके इससे देखो, मैं ये सीट शेयर करता हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, ये मैंने मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया है। आप बस जिससे भी आपको कंपैरिजन करना है, आप केवल 20 का उतना परसेंट उसमें ऐड कर दो। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा फार्मूला क्या किया मैंने। 70% मार्क्स दिया है, देखो 28, E7 + 28, मतलब 40 का 70%। ओके, और एक दूसरा जो हमने ये फार्मूला दिया, ये देखो, ये इस ये 14 ऐड किया है इसमें, 14 ऐड किया, मतलब 20 का 70%, 80-20 वाले मेथड से। तो ये सब है, ये फार्मूला देख के आप जान जाओगे। इस तरह से आप कन्वर्ट करके अपना देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि 75 मार्क्स एक पुअर मार्क्स नहीं है। ठीक है, हाँ, ये है कि 80 के अराउंड, जो 95, 96, 97 या 100 के अराउंड है, वो ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये बताता हूँ मैं। रिजल्ट में देखोगे एक यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब फर्स्ट बंदा 110 पाया है, फिर 110, 16, 105, 105, 104, 103, 98, 97, 90। देखो, यूनिफॉर्मिटी मीन्स जंप नहीं है। जैसे कि एक बंदा 110 पाया तो सेकंड हाईएस्ट 91 पे आ जाए, 95, ऐसा कुछ गैप नहीं है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा तब होता है जब ये सब लोग एग्जाम के पहले से ही सब लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये ज्यादातर रिपीटर्स जब होते हैं, मतलब एग्जाम के लिए रिपीट करने वाले रिपीटर्स, जिस एग्जाम में रिपीटर्स होंगे, उस एग्जाम में आपको यूनिफॉर्मिटी मिले। यूनिफॉर्मिटी मीन्स गैप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एक सिंपल गैप के बीच में, मतलब एक डिक्लाइनिंग नेचर उनका ऐसे होगा थोड़ा सा। मतलब ये ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि साइन एक्स की तरह बनाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वे भी कर बनाओ, ऐसा नहीं बना रहा हूँ। इस तरह से आप देखोगे यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज इंटरव्यू। इंटरव्यू अब बहुत टफ हो गया। क्यों पता है? एवरीवन इज इन द कंपटीशन। अभी ये 110 वाला बोल नहीं सकता कि उसका श्योर शॉट सिलेक्शन है उसकी जगह, किसी और की जगह पे। क्यों? क्योंकि 110 और 97, 90 इनके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट आ गए हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। और आप ये देखो, 400 बंदे को देखते हैं हम, 400 प्लेस पे 200, 400 इधर आया, ये ये 79, मतलब 80, 80 ये है, और 110। अब इसके डिफरेंस में बीच है 30 का, 30 मार्क्स का वो डिफरेंस पाया हुआ है टॉपर। ओके, अब ये 30 मार्क्स का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है? 60% अगर हम ऐड करें तो 18 मार्क्स आती है, और अगर हम इसको 80% में कन्वर्ट करें, इसका 80% लें, तो 24 मार्क्स आता है। मतलब ये किसी से 24 मार्क्स आगे है, किसी से 18 मार्क्स आगे है। ठीक है,
अब जब अगर 80-20 का होता तो इसको तो है कि जो 20 आउट ऑफ 20 पाएगा उससे भी ये आगे रहेगा, तो ये थोड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन 60-40 में जब 60-40 हो गया, तो अब अगर कोई बंदा 40 मार्क्स का है, ठीक है, और ये कितना पाया, 28 ज्यादा पाएगा उससे, ठीक है, 28 ज्यादा पा गया, 40% ना उसका, तो 28 पाएगा। 18 मार्क्स का 18 मार्क्स इसने ज्यादा पाए हैं रिटेन में। चलो इस रिटेन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। रिटेन को कन्वर्ट करेंगे किस में, हम मान लो करते हैं कि इसका 18 मार्क्स जो ज्यादा है वो 60% ज्यादा है, 18 का 60% जब हम कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक। 18 इसका 60% है तो इसका भी 60% होगा ना, तो 18 का 60% कितना हो गया, लगभग 5 नंबर आएगा, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स ना, ये तो आएगा। देखो 10.8 आएगा, करेक्ट, सॉरी, 10.8 आएगा, मतलब ये 10.8 मार्क्स रहेगा। अभी देख रहे हो 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। अगर इसको इन्होंने 40 मार्क्स में से केवल 60 मार्क्स दिए, 24 मार्क्स, और एक बंदे को 36 मार्क्स दिए, 90%, तो अभी देखो आप डिफरेंस, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। अच्छा ये जो डिफरेंस है पता है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ 40 है, इसको 40 में कन्वर्ट ही करना नहीं है, ये आउट ऑफ 40 ही मिल रहा है इसको, करेक्ट, उसमें आउट ऑफ 40 नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो भी मार्क्स है वो वो मार्क्स ऐसे हैं कि आप कर सकते हो, जो भी 75 के राउंड वाले बंदे हैं वो नीड नॉट टू वरी, 75 वाले नीड नॉट वरी। और इंटरव्यू शेड्यूल मैं दे दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, बट आई वोंट बी टेकिंग इंटरव्यू ऑफ पर्सन्स स्कोरिंग मोर देन 85, 90, 110, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी स्कोर किए हैं, इन लोग को ज़्यादा गाइडेंस का ज़रूरत है। हाँ, कंडक्ट करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, इन लोग जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको दूंगा, बट फर्स्ट आई विल प्रीफर ऑल मीडियोकर्स, जिनको कम मिला है। भाई देखो इनका, इनको सहारा चाहिए, इन बंदों को बता, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा डिमोरलाइज होंगे ना कि इनका मार्क्स कम है, इनको गाइडेंस की जरूरत है, इनको बताना है कि प्रॉपरली आप कैसे वहां पे, किस तरह से आप इंटरव्यू पैनल को अपने हिसाब से लेके चलोगे पूरे इंटरव्यू के टाइम में। अगर इंटरव्यू पैनल ने आपको अपने कब्जे में ले लिया, फिर आपका इंटरव्यू हो चुका, आप फिर गए, आप फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये ट्राई करो कि कोई ऐसा आंसर ना दो कि उस आपका अपना नॉलेज शो करने में आपका करियर बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से चलो, सर्कुलर्स पढ़ो, ये पढ़ो जो उन लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स होंगे, हो सकता है वो रिपीटर्स हों, तो जो लोग फ्रेश दिए हैं, फर्स्ट टाइम दिए हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी और वैकेंसी आने वाली हैं, और ये वाली वैकेंसी तो इंक्रीज होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन ही नहीं हुआ कि इसको इंक्रीज करना है। अभी स्ट्राइक जो हुई थी उसके बारे में भी अभी फ्रिक्शन चल रहा है मैनेजमेंट के बीच में और यूनियन के बीच में, तो अभी रिसेंट में तो नहीं कह सकते, बट वैकेंसीज फिर आ रही हैं, ये श्योर है। और अभी अभी ज़्यादा, इस बार और ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो जिसका भी अगर नहीं होता है या बच जाता है या परेशान होते हो, तो नीड नॉट वरी, अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। देख रहे हो ना किस तरह का कंपटीशन है, बच्चों के नंबर के बीच में किसी तरह का कोई गैप ही नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं, सब 85, 85, फिर 84 भी मिल रहा है आपको, 83 भी मिल रहा है, 82 भी मिल रहा है, आप मार्क्स देखो। तो इस तरह से आपको ये जान के चलना है कि जिसका 75 मार्क्स है वो भी अच्छी तरह स्कोर कर सकते हैं, इवन 70 वाले भी अगर चाहें तो उनकी किस्मत अगर साथ देगी तो वो भी इन हो जाएंगे। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में, और आपका 70 तक भी है, तब भी आपको फेयर चांसेस हैं। स्पेशली आप इंटरव्यू बहुत ही सुपर्ब करके आओ, क्योंकि देखो अ- अभी इंटरव्यू की बात करते हैं, अभी रिटन का एनालिसिस का बात हो गया,
इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, देखो, about interview, note one thing that which is most important, that in interview Bank of Maharashtra is completely different from other interview। ये सही बात है। जब आप महाराष्ट्र का इंटरव्यू दोगे और आपको रिजल्ट आएगा ना इंटरव्यू का, तब आपको पता चलेगा कि इसका इंटरव्यू दैट इज नॉट लाइक आईबीपीएस। क्या है, वो पहले ही प्रोफाइल देखेंगे आपकी। अगर आपका प्रोफाइल उस तरह से है तो दे विल बी इम्प्रेस्ड। अगर आपको नॉलेज है दे विल बी इम्प्रेस्ड। अगर आपका जेआईबी सीआईबी है दे विल बी इंटरेस्ट इम्प्रेस्ड। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ड्रेसिंग सेंस का बहुत कारपोरेट कल्चर जैसा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वैसा नहीं है। बी एक्सट्रोवर्ट। अगर आप जस्ट व्हाट दे आस्क, जस्ट आपने सिंपली लाइन टू लाइन आंसर दिया फिर साइलेंट बैठ गए, उनको इंगेज नहीं किया। अगर आप इंगेज नहीं करोगे इंटरव्यूअर को तो देन एवरी वन विल बी ट्राइंग टू ग्रैब यू एंड एवरी वन विल बी आस्किंग आंसर्स फ्रॉम यू। आप उनको एंगेज करो ताकि उनको लिसनिंग में मजा आए, उनको सुनने में, आपकी बातें सुनने में उन्हें अच्छा लगे। आप कहानी ही बताओ, स्टोरी ही बताओ, उनको कुछ भी किसी तरह से मोल्ड करो, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट सेलेक्टेड। ओके, कुछ चीजें जो आपको इंटरव्यू में नहीं करनी है, ठीक है, वो मैंने फर्स्ट पॉइंट में शायद बताया है ना। अ, नहीं, इसमें लग रहा है कि छूट गया है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आर्गुमेंट। अगर आपने आर्गुमेंट किया, ठीक है, तो आप गए, चाहे 110 हो, दे विल फेल यू। दूसरा, आर्गुमेंट नहीं करना है। दूसरा, रॉन्ग आंसर नहीं देना है। रॉन्ग आंसर अगर दे भी दिए देन इट इज आ सॉरी सर, हाँ, ओके, आई विल रिवाइज इट। जो चीज़ नहीं आती उसको सॉरी सर बोल के चुप नहीं बैठना है। उसके बाद आपको बोलना है आई विल स्टडी अबाउट इट मोर once I reach my residence or my home today। इसके सर, सर भी लगाना है, सर आई विल स्टडी मोर ऑन दिस एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अगर वो उसके बारे में कुछ बनाते हैं सुनो। ठीक है। दूसरा, बीच में मत बोलना। बीच में बोलने का मतलब क्या है, जब आप इंटरेक्ट करते हो ना एक दूसरे से, जैसे दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो भी बोल रहा होता है, आप भी बोल रहे होते हो, ये मत करना। फर्स्ट लिसन देन रिप्लाई। और अगर आपके रिप्लाई में कोई इंटरव्यूअर कुछ भी बोलने लगता है तो जस्ट यू स्टॉप, फिर रिप्लाई नहीं देना है आपको। जब वो स्टॉप हो जाए तो आपको वो देना है तो वो दीजिए, या उसने क्रॉस क्वेश्चन पूछा है तो क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, उससे रिलेटेड है तो। देन आल्सो यू फिनिश द फर्स्ट वन। ठीक है, वैसे अगर फर्स्ट वन को फिनिश, दे आर नॉट नोटिसिंग अबाउट, अगर उनको पूछना होगा दे विल आस्क इट अगेन। बट अगर वो बंदा कोई भी इंटरव्यू का पैनल, कोई भी पैनल, मान लो दो पैनल है, आपने इसका जवाब दे रहे हैं और इसने बीच में कुछ और बोलना चाहा, यू स्टॉप दैट पॉइंट। ये नहीं कि ये बोलता जा रहा है आप भी बोलते जा रहे हो, इसका भी जवाब तो नो नो नो, कुछ नहीं, खिचड़ी बना दोगे पूरा तुम और फिर अपना समझना। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस चाहिए तो जस्ट मैसेज मी @ एग्जाम जोन 24/7, सब स्मॉल में है, @ लगा हुआ है टेलीग्राम पे। ठीक है, मैसेज करो। ठीक है, डिटेल्स एंड योर इंटरव्यू स्लॉट कब है। ओके, फर्दर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तभी इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। तो देन इफ़ यू आर अटेंडिंग इंटरव्यू क्लासेस समवेयर एल्स यू डू, ओके, बिकॉज आई, नहीं है, कुछ टाइम जो बचता है उसमें मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। और लास्ट टाइम सीबीओ के इंटरव्यू में मुझे 11 हो गया नाइट, तो नेक्स्ट डे मुझे जाना भी था, तो इस वजह से थोड़ा हुआ। तो आई विल बी वेरी चूजी दिस टाइम एंड यू यू डू योर बेस्ट, यू विल गेट सिलेक्टेड, डोंट वरी। जो भी लोग 75 वाले हैं उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, 75 मार्क्स वाले, वेरी गुड चांसेस, वेरी गुड चांसेस, जस्ट डू बेस्ट, गिव योर बेस्ट।
वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी मान के इंटरव्यू दो ये, बट प्रेशराइज्ड मत हो कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या होगा क्या होगा। नो, इट विल किल यू, किल योर कैरियर। ठीक है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचते रहोगे कि ये करता तो ये हो जाता हो। जो भी आंसर दे रहे हो, डू कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ओके, thank you for watching, and if it is it seems good, your materials seems good, you just like and subscribe it. It is a sincere request to you all. If you do not like this content, do not like, do not subscribe, do not watch, uh, go somewhere else, and whatever is beneficial to wherever you are getting the best, you go there. It is uh, think. And what if you want some other things, new lectures on any some topic which is having confusion in you and all these things, uh, you message me, you comment on the videos, and you will get it. Okay, further we will be stopping the session.